सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक है हमारे पास। इसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एनर्जी, आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन को डिराइव करेंगे, निकालेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बॉक्स मीन्स अ रीजन ऑफ स्पेस इन विच अ पार्टिकल इज फ्री. That means the potential energy of particle is zero in this region and infinite outside it. So we will draw a one-dimensional box. Let one-dimensional box means the particle is in one direction. That is कि सिर्फ x axis में है. तो suppose करो ये हमने एक particle, ये एक region हमने confine कर लिया, ये एक रीजन ले लिया, इसकी हमने बाउंड्री फिक्स कर दी कि यहाँ पर x की जो पार्टिकल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है और यहाँ पे ये जो पार्टिकल की वैल्यू है a है. दैट मीन्स कि ये जो बॉक्स है इसकी जो लेंथ है दैट इज a. क्लियर? और जो हमारे पास कंडीशन होती है पार्टिकल इन अ बॉक्स मीन्स कि पोटेंशियल बॉक्स पार्टिकल इज फ्री. तो फ्री मीन्स कि जो बी एक्स इज इक्वल टू 0 inside the particle and Vx is equal to infinite outside this region. Vx is equal to infinity. Clear? So box means a region. Box means a region of space. Means a region of space in which a particle is free. In which particle is free, that means potential energy of particle is zero in this region and infinite outside it. Outside it. Clear? And one dimensional means कि पार्टिकल जो आपके पास सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं. क्लियर? Now here consider a particle of rest mass m confined to move in one dimensional box. Consider a particle of mass m, of rest mass m, confined to move in one dimensional box of length a along x-axis. Now we will the two conditions. First is the walls of the box are rigid. Walls of the box are rigid. Rigid means कि उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि जो लेंथ है ये नहीं हो सकता कि लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी. क्लियर? ये ऐसा नहीं होगा कि लेंथ जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी. लेंथ हमेशा क्या रहेगी? लेंथ क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी. The walls of the box are rigid and elastic so that particle particle rebounds from the walls with same kinetic energy. With same kinetic energy. Second condition is the walls of the box are non-penetrable. non-penetrable. दैट मीन्स कि एक बार जो पार्टिकल चला गया वो ठीक है. इसके बाद ऐसा नहीं है कि बार बार पार्टिकल्स जो आपके पास जाते रहेंगे. क्लियर? ठीक है. तो उसमें क्या होगा? आपके पास नॉन पेनिट्रेबल है. दैट मीन्स कि जो पार्टिकल है, एक बार जो पार्टिकल अंदर है वही रहेगा. देर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स आउटसाइड द बॉक्स. कि ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अंदर बाहर मूव कर रहे हैं. क्लियर? इस तरीके का जो बॉक्स होता है दैट इज योर वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स. क्लियर? अब हम इसमें एनर्जी, आइगन वैल्यूज निकालेंगे. तो मैथमेटिकली the potential energy of the box can be written as, that is Vx is equal to 0
कब? इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, दैट इज फॉर x लेस देन a ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी outside the box, outside the box, that means for x less than a and x less than 0 and x greater than a, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हो जाएंगी. नाउ वी विल यूज वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave equation, time independent Schrodinger wave equation. तो टाइम वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट Schrodinger wave equation क्या थी आपके पास? दैट इज डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वेयर into E minus V psi is equal to 0. Here m is the mass of the particle and E is the total energy of the particle. Now we have to find out the solution of this equation. Let it be, this is your equation number 1 and this is your equation number 2. We have to find the solution of equation number 2 only for the reason this, that is when x is equal to is inside the particle, because we have to find the, because outside it potential is infinite, clear? So we have to, so we can, this is the equation inside the box, so we will find the equation for this condition, that is when v is equal to 0. So the equation 2 will becomes, so inside the box equation 2 will become, equation 2 will be d square psi by dx square plus 2me divided by h cut square psi is equal to 0, or this is your equation number 3 and we can write d square psi by dx square. अब ये जो चीज़ है 2me by h कट स्क्वेयर, ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हमने कांस्टेंट नाम दे दिया अल्फा स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 4 वेयर अल्फा इज इक्वल टू 2me by h कट स्क्वेयर अंडर द रूट. तो अल्फा हमने क्या दे दिया? 2me h कट स्क्वेयर अंडर द रूट, क्लियर? तो ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 4 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5, क्लियर? तो अब हमें क्या निकालना है? जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका हमें इक्वेशन नंबर 4 का क्या है, हमें सॉल्यूशन निकालना है. इक्वेशन नंबर 4 का वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4. नाउ द जनरल सॉल्यूशन of equation 4 is given by psi x is equal to a e की पावर iota alpha x plus b e की पावर minus iota alpha x, where a and b are constants, where e, b and are constants and can be found using boundary conditions imposed on psi, boundary conditions imposed on psi. So फर्स्ट कंडीशन इज कि जो कंडीशन जो लगनी है हमारे पास, द फर्स्ट कंडीशन इज लेट इट बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6. तो जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज द साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 0
एंड x इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स कि इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए. सो दैट इज व्हेन psi इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, कि जब psi की वैल्यू 0 होगी जब x आपके पास 0 होगा. अगर हम इस कंडीशन पे यहाँ पे देखते हैं तो x 0 होगा तब psi की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ से e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1. तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 7. एंड सेकेंड इज psi इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू a, की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जब x की वैल्यू a होगी. दैट इज a e की पावर आयोटा अल्फा a प्लस b e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a शुड बी 0. कि x की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम यहाँ पे वैल्यूज क्या पुट कर देंगे, इसकी a वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 8. ठीक है, अब यहाँ से b की जगह माइनस ए पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, a e की पावर आयोटा अल्फा a माइनस e की पावर माइनस आयोटा अल्फा a इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी. लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि a इज इक्वल टू 0 हमने मान लिया, a अगर हम ये मानेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर हमने ये मान लिया कि a 0 के इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b भी 0 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, a और b दोनों अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो साई x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. तो इससे क्या हो जाएगा, हमें नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए, हमें ज़ीरो सोल्यूशन नहीं चाहिए है. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं कि इफ़ a is equal to 0 then b will also become 0. That gives psi is equal to 0 which is not allowed, कि ये हमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो a 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि e की पावर आयोटा अल्फा a माइनस e की पावर माइनस अल्फा आयोटा a इज इक्वल टू 0. अब अगर ये 0 होगा हमारे पास तो ये फॉर्मूला हमें पता है, साइन की टर्म में अगर हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अगर हम इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2 आयोटा साइन अल्फा ए इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास से, दैट इज 2 आयोटा साइन अल्फा ए दैट इज इक्वल टू 0. अब 2 आयोटा भी 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ए इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ए इज इक्वल टू साइन एन पाई, क्योंकि साइन 0 क्या होता है एन पाई. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 9. हेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3. यहाँ पे भी n को हमने 0 नहीं लिया क्योंकि n को अगर हम 0 लेंगे तो अगेन हमारे पास ये सारी टर्म 0 आ जाएंगी और फिर से हमारे पास ये साई इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉब्लम आ जाएगी जो कि हमें नहीं चाहिए है. क्लियर. अब हम बात करेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 6 थी हमारे पास वो अब हमारे पास क्या बन जाएगी. देखिए अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे ये वैल्यूज़. तो जो इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 6 विल बिकम, इक्वेशन 6 विल बिकम साई इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स. यहाँ पे हम सिर्फ मॉडुलस ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू माइनस बी था तो हम प्लस का साइन ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं, हम उसका वहाँ पे सिर्फ एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे. तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इज इक्वल टू 2 आयोटा ए साइन अल्फा एक्स. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 10. साई इज इक्वल टू 2. अगेन ये सब कांस्टेंट है तो इसको हमने एक सिंपल कांस्टेंट दे दिया, सी साइन अल्फा एक्स. दैट इज साई. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 11. क्लियर. अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की, द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो लिमिट है हमारे पास पार्टिकल 0 से a के बीच में है, साई x मोड स्क्वायर with respect to dx should be equal to 1. This is the normalized condition for normalized wave function. तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे साई की.
तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से a सी स्क्वेयर, साई की जगह क्या करेंगे सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर मोड बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटू साइन स्क्वेयर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वेयर अल्फा को हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, दैट इज सी मोड स्क्वेयर, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2 साइन स्क्वेयर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी मोड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, 0 टू ए, साइन स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखते हैं, दैट इज सी मोड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 ए माइनस साइन 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अल्फा लिमिट 0 to a is equal to 1. Now we know that alpha is equal to nx from the equation 9. From equation 9 alpha is equal to nx by a. ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, so from equation 9 this is your equation number 9, so alpha is equal to, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इसमें पुट करेंगे, तो जो वेव फंक्शन हमारे पास आएगा, तो जो कंडीशन है नॉर्मलाइजेशन की, ये क्या बन जाएगी हमारे पास कि c मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस 1 बाई 2 अल्फा साइन 2n पाई a x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन n पाई की वैल्यू क्या थी 0 होती है हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी मोड स्क्वेयर बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू 1, तो सी मोड स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई ए, तो c इज इक्वल टू 2 बाई ए अंडर द रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c की, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 12, दैट इज़ इक्वेशन नंबर, हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 12, दैट इज़ c इज इक्वल टू 2 बाई ए अंडर द रूट। क्लियर, तो ये जो c की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11 में। ठीक है, तो c की वैल्यू जो बन जाएगी, तो यहाँ पे तो साई की जो वैल्यू थी हमारे पास, दैट इज साई वॉज c साइन अल्फा एक्स, तो साई की जो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगी, तो साई इज इक्वल टू c की जगह हम पुट कर देंगे 2 बाई ए अंडर द रूट साइन अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे n पाई बाई ए n पाई x बाई ए। So that was psi nx. That was psi nx की जो nth वेव फंक्शन है, that was the eigen function, that is eigen function for one dimensional potential box, for one dimensional potential box। क्लियर, अब हम निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 5 पे जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता देती हूँ, इक्वेशन नंबर 5 आप चेक कर लेना क्या थी आपके पास। सो इक्वेशन नंबर 5 वॉज, जहाँ पे हमने अल्फा को कंसिडर किया था, अल्फा वॉज 2me बाई एच कट स्क्वेयर अंडर दी रूट, तो यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वेयर, तो यहाँ से जो e की वैल्यू है दैट विल बी
h cut square alpha square divided by 2m, and for nth particle En will be n square pi square h cut square divided by 2ma square। ये कैसे आई? यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी n पाई बाई ए। अल्फा क्या था हमारे पास? n पाई बाई ए। अल्फा वॉज n पाई बाई ए। ठीक है, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। सो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर वन डायमेंशनल पार्टिकल इन अ बॉक्स। नाउ समटाइम्स एग्जाम्स में वो आपसे पूछते हैं फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी for a particle in वन डायमेंशनल बॉक्स। कि पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो देखिए ई एन की जो वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। अब अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 लिखते ही साई आपके पास 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 है। फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है दैट विल बी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। दिस इज नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या दो चीज़ें क्या निकाली। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो सिंपली क्या देता है, एक्सप्लेन पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स और फाइंड द एनर्जी आइगन वैल्यूज एंड एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स।